Hello students, today I will be taking Marketing Management Unit 3. In Module 3, I will be teaching Introduction of Pricing, Objectives of Pricing and Factors Influencing Pricing. See, people have already studied about marketing mix, and you all have studied about the four main elements of marketing mix, which is product, price, place, and promotion. And pricing is one of the important key element of the marketing mix. Product, place, and promotion, it represent cost. For making effective all these elements in marketing, we have to invest a certain cost. But price is only the element in marketing mix which produces revenue. While pricing a product, company has to take immense care and consideration, because if prices is too high, in that case, or even too low, the product will fail in the market. If you charge more price, the consumer will not have that much purchasing power to purchase it, and the demand will fall. And if you will keep your price of the product is very low, then a consumer will think that it is of a low quality. In that case also the demand will fall down. So a price should be very appropriate. It should not be too high and it should not be too low. See, smart managers treat the pricing as a strategic tool for capturing and creating customer value. If I talk about customer value, people would have studied what is customer value. Customer value means total cost minus benefits. It's come out customer value. See, price is the amount charged for a product or service, or some of the values that customer exchange for the benefits of using that product and services. Pricing objectives. There are certain many objectives which company consider while deciding a pricing. Pricing objectives are the goals that guide the company in setting the cost of a product or service to the existing or potential consumer. Pricing objectives are selected with considering business and financial goal, right? See, let's take an example. If a business has a mission that they want to become a leader in the industry, in that case, company will focus on the quality. And if the company will focus on the quality, that means the prices of the product will be higher, right? And if the company is looking for growth in production in the near future, that means company has to focus on the profit, right? So company has to consider two aspects, business goal as well as the financial goal. There are many objectives. The first objective is your profit. See, profit has a direct and indirect uh, link with the price. If I say that, or I can say that price has both a direct and indirect effect on profit. The direct effect relates to the price which the company is going to charge should cover the cost of producing the product. देखिए, पहला जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट ये होना चाहिए कि जो भी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट आ रही है, प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो जो आपका प्राइस आप डिसाइड कर रहे हो वो कॉस्ट उसमें कवर अप हो जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा प्लस उसके बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करोगे, ठीक। दूसरा इनडायरेक्टली कैसे रिलेट होता है? इनडायरेक्टली रिलेट होता है कि दैट हाउ मच यूनिट्स कंपनी इज गोइंग टू सेल, ठीक है, कितनी यूनिट्स कंपनी सेल करेगी, ठीक, उससे जो प्रॉफिट अर्न होगा इट इज ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस।
नेक्स्ट है आपका सेल्स। देखिए सेल्स क्यों, अगर कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्स को इंक्रीज करना, सेल्स को बूस्ट करना, तो उसको मेन फोकस करना पड़ेगा वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, राइट। क्योंकि आप प्रोडक्ट का प्राइस हायर चार्ज नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट का प्राइस लोअर चार्ज करोगे और फोकस करोगे वॉल्यूम ऑफ सेल्स पे। जब कंपनी का वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा तब आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा। दे लेट्स वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिलायंस जियो, व्हाट दे हैड डन, दे फोकस ऑन द वॉल्यूम, राइट। और जब वॉल्यूम पे उन्होंने फोकस किया, अब मैक्स आप नाउ 70 80 60% पीपल आर हैविंग एसोसिएटेड विद जियो। तो क्या है आज के टाइम में, अगर आप सिनेरियो में देखें तो मार्केट शेयर ऑफ जियो हैज बीन इंक्रीज विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years, ठीक है। It doesn't take more years, it will take only 3 years. Why? Because their main focus is on the sale, और उसके लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस लोअर चार्ज किए थे एंड दे फोकस ऑन द वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट, कंपटीशन। देखिए व्हाई द कंपटीशन, if a company has an objective to set a price इन रिलेशन टू योर कंपटीशन, तो आपको कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपका प्रोडक्ट सिमिलर है आपके कॉम्पिटिटर से, तो कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, यू हैव टू कीप योर प्राइस same, or you have to keep your price as low as possible in order to minimize profit attractiveness of product. अगर आप अपने competitor से ज़्यादा price charge करोगे then definitely जो customer है वो switch हो जाएंगे competitors की तरफ, right? तो you have to study the pricing strategy or the pricing of a product of a competitor. Next है आपका market penetration। देखिए what is penetration? Penetration का means होता है to enter depth into the market। अगर आपको market की depth में जाना है and if you want to attract the maximum number of customer, then in that case you have to keep your price low, because in India the customers are very much price sensitive। price sensitive क्यों है? Because in India the customer looks, whenever they buy a product they look for a price, ठीक है। अगर आप prices बहुत ज़्यादा lower भी charge करोगे, in that case they have a mentality, they have a perception that quality of a product is low, and if you charge a higher price, in that case they do not have that much purchasing power। तो अगर आपको market में penetrate करना है तो आपको अपना price low रखना पड़ेगा just to gain the price sensitive buyers, ठीक है। And after that you will rapidly gain the market share. And the biggest example I can say is for Amazon and Uber. Why? See, there are many online e-commerce companies like Amazon, Flipkart, but why the Amazon? And Amazon, last year Amazon has having a loss, a very is suffering from a very huge loss, right? Still they are giving the discount, right? Great Indian sale, Amazon is coming with a great Indian sale and keeping the prices as low as possible। अगर आप great Indian sale में अगर आप प्रोडक्ट के प्राइसेस देखें तो वो बहुत लो होते हैं कंपैरिजन टू ऑफलाइन रिटेलर्स एंड कंपैरिजन टू अदर online competitors, right? Why? Because their main objective is to capture the market share, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेबलाइजिंग। सी, स्टेबिलिटी इन प्राइस मेक्स अ गुड इंप्रेशन ऑन बायर्स। अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली अपने प्राइसेस को चेंज करोगे देन कस्टमर हैज डेफिनेटली अ परसेप्शन दैट समथिंग इज रॉन्ग विद दिस कंपनी। तो जो आपने प्राइसेस डिसाइड किए हुए हैं दे शुड बी स्टेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट शुड नॉट इफेक्ट और शुड नॉट चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली। अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करती है, इट शुड keep or should forecast, it should consider to take this price for 5 or 10 years. It is a very good example of Maggie. See, when Maggie came and we decided in 90s that they will be charging 10 rupees till 2012 they are charging 12 rupees, ठीक है। they have taken a span of 20 years and they have not changed their price, but when the Maggie has been banned and it again has been launched, then they increases the prices। So you have to
charge or have to keep a price for a longer period of time, right? Next is your survival. See, why it is survival, हर कंपनी की कोशिश रहती है कि चाहे कोई भी इकोनॉमिक स्टेज हो, चाहे कोई भी बिजनेस स्टेज हो, वी हैव टू सर्वाइव. आप लोगों ने इकोनॉमिक में साइकिल पढ़ी होगी, देयर आर 4 साइकिल्स, डिप्रेशन, बूम, रिसेशन एंड स्टेगनेशन. तो इसमें क्या होता है, अगर इफ आई टॉक अबाउट आज के सिनेरियो में मैं बात करूं, तो आज का सिनेरियो रिसेशन का है. ठीक है, आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है परचेज करने के लिए, और अगर आप चाहते हो कि इस सिचुएशन में आपकी कंपनी सरवाइव करे, तो आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े से लोअर रखने पड़ेंगे. ठीक है, एंड एज सून एज द सिचुएशन passes away, after 1 or 1.5 or 2 years, you change your prices, you come up with your previous prices. ठीक है, many companies are doing it, many companies are doing it, like automobile companies, they are doing it, like smartphones, they are doing it, they have changed their prices, क्योंकि आपको पता है मार्केट में डिमांड नहीं है, people are having have reduced their purchasing, have reduced their shopping criteria, right? तो इस चीज में क्या होगा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े से लोअर कर देंगे, ठीक, जस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, तो अब अगर आने वाले 1-2 साल में अगर सिचुएशन ठीक हो जाएगी, यू कम अप विद योर रेगुलर प्राइस. तो सर्वाइवल शुड आल्सो बी द मेन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिसीजन. देखिए, 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके प्राइस डिसीजन को इफेक्ट करते हैं. वन इज योर इंटरनल फैक्टर एंड अनदर इज योर एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर्स में आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, marketing mix strategy, product cost, and organizational consideration. And in the external factor, demand, competition, suppliers, economic conditions, consumer, and government. See, what are internal factors? Internal factors वो factors होते हैं that can be controlled, determined, and processed by an organizations. ठीक, this factors are mostly in relation with the organizational business level strategy, and it is very much influenced by the nature of business. The first one is your cost. See, if you decide a price of a product, it is one of the major factor. In cost, we cover two types of cost. People would have studied in economics: fixed cost and variable cost, right? The cost and fixed cost and variable cost, and the cost of production is also influenced by supplier cost, macroeconomic trends, and nature of business. See, apart from the total cost, it is also being affected by the supplier cost, because your variable cost is linked with your मटेरियल कॉस्ट. अगर आपकी मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी, और वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आपकी टोटल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी. ठीक है, मैक्रोइकोनॉमिक ट्रेंड मीन्स दैट इफ देयर इज अ इन्फ्लेशन और इफ देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, दैट मीन्स यू कैन इंक्रीज योर प्राइस, राइट, द कॉस्ट विल इंक्रीजेस, बिकॉज अगर मार्केट में अगर आपका बूम होता है, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन होता है, तो बाकी सारे फैक्टर्स भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो इसका इफेक्ट भी आपके टोटल कॉस्ट में पड़ता है. ठीक है, एंड एट द नेचर ऑफ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है जिसमें आपका R&D इन्वॉल्व है, लॉट ऑफ क्रिएटिव पीपल आर इन्वॉल्व, तो आप जब वो लोग इन्वॉल्व है, तो बट ऑब्वियसली बात है, you will the costing of that product will also be increased. ठीक, नेक्स्ट है आपका कंपनी ऑब्जेक्टिव. अगर आप प्राइस डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको कंपनी ऑब्जेक्टिव को भी कंसिडर करना पड़ेगा. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिकम अ मार्केट लीडर, टू अर्न अ प्रॉफिट, राइट, और टू प्रोवाइड अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. What may be the company objective? In that case only you have to decide a price. अगर आपका मेन मोटिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, तो आपको सर्विस सेंटर्स पे फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, आपको बेनिफिट्स पे फोकस करना पड़ेगा. ठीक, इन दैट केस प्राइसेस कैन बी हायर. और अगर आपका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इन दैट केस आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा लो चार्ज करना पड़ेगा. यू हैव टू फोकस ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स टू कैप्चर द मार्केट. और अगर जब आप वॉल्यूम ऑफ सेल्स अपनी इंक्रीज कर लेंगे, मार्केट शेयर इंक्रीज कर लेंगे, देन योर प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज इन द
long run. Next is your organizational factor. See, pricing decisions occurs at on two levels in the organization. Overall pricing strategy is being done by top executives, right? And they decide the price on the basis of market segments. Means ये जो particular आप product बना रहे हो ये किस segment के लिए बना रहे हो, which is more important on for which segment you are preparing it. तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको अपना प्राइस सेट करना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ luxurious item like like take an example of Jaguar or Mercedes. When they decide a price of a product, they don't go for they know that ये लोग जो इसको परचेज कर रहे होंगे दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, ये ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं होंगे, ये ज़्यादा प्राइस की तरफ नहीं देखेंगे. दे विल लुक फॉर मोर फीचर्स, for more standards in their features, more specifications, more status symbol. तो ये लोग उसको फोकस करेंगे, ये लोग बार्गेनिंग नहीं करेंगे, नेगोशिएशन नहीं करेंगे. If a person is purchasing a car of 50 lakhs or 1 crore or 25 lakhs, they will not go for the negotiation and भाई 2,000 रुपये कम करा लो, 5,000 रुपये कम करा लो. They will go for more specifications, they will go for more standards, they will go for more status symbol as a. ठीक है. Next is the actual mechanics of pricing are dealt with at lower level also in the firm and focus on individual product strategies. Or usually some combination of production and marketing specialists are involved in choosing the price. Apart from top management, the lower management also helps in contributing towards deciding the pricing decision or product strategies. ठीक. नेक्स्ट इज योर मार्केटिंग मिक्स. देखिए पहले बताया था कि जो आपका प्राइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू. ठीक. अ शिफ्ट इन वन ऑफ द एलिमेंट, अगर आप प्राइसेस में कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ भी प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं, तो इसका इफेक्ट आपके प्रोडक्शन पे, प्रमोशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा. और अगर आप प्राइसेस को लोअर करते हैं तो आपका इफेक्ट प्रोडक्शन पे, प्रमोशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा. मींस अ चेंज इन द प्राइस विल आल्सो इफेक्ट ऑल अदर थ्री एस्पेक्ट्स. अगर आपने प्रोडक्ट का प्राइस लोअर रख दिया, ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट का प्राइस लोअर रखा तो आप अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेटिव फीचर्स आप नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर आप इनोवेटिव फीचर सोचोगे तो नो डाउट क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी और आपका प्राइस भी इंक्रीज होगा. एंड इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन टू इंक्रीज द प्राइस, इन दैट केस मीन्स आपके प्रोडक्ट के फीचर्स थोड़े से एवरेज है. प्रमोशन, अगर आपने प्राइस बहुत कम रखा है तो आप ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज में नहीं सोच सकते. यू कैन नॉट से दैट आई विल बी डूइंग अ टीवी ad with taking a Salman Khan in the ad. No, the cost is involved in it. Then you will be looking for social media, or you will be looking for distributing free samples or boardings or hoardings like that. अगर आप आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर आपने अपने प्राइसेस लोअर रखे हैं उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैं अपना एक शोरूम बना लूँगा और अपना प्रोडक्ट क्या कहते हैं स्पेशलाइज स्टोर के थ्रू करूँगा. नो, इन दैट केस ऑल्सो आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो भी बहुत लिमिटेड रखना पड़ेगा. ठीक है. तो प्राइस हैज विल इफेक्ट other three elements also. The effort on implementing strategies will not succeed unless the price changes is combined with the total marketing strategy that supports it. Right? Next is your product differentiation. That price of the product also depends on the characteristics of a product. Very very important, which I have told in the earlier point. अगर आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स में कुछ भी चेंजेस किए हैं, स्पेसिफिकेशंस में कुछ भी चेंजेस किए हैं, तो इसका इफेक्ट आपके प्राइस में भी आएगा. और इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट हो, दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी सुपीरियर हो, साइज में डिफरेंट हो, कलर में डिफरेंट हो, अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो, इसके कई सारे मल्टीपल यूजेस हों. ठीक है. तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है द प्राइसेस विल इंक्रीज. अ कस्टमर हैज टू पे द मोर प्राइसेस. ठीक है. अब जैसे सपोज अ स्मार्ट टीवी आ गया है. स्मार्ट टीवी व्हाट इट इज डूइंग मल्टीपल क्वालिटी देख लीजिए, साइज देख लीजिए, कलर देख लीजिए, देन योर लुक, सी द लुक, यू कैन
फॉर द स्मार्ट टीवी आप इसको एज अ लैपटॉप की तरह भी काम कर सकते हैं, आप उसमें कुछ वेब सीरीज पिक्चर्स भी दे सकते हैं थ्रू फायर स्टिक, तो आप बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। तो इसके लिए अगर आपने अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर रखा है, इन दैट केस कस्टमर हैज टू पे अ मोर प्राइस। Now, the external factors. See, external factors वो factors होते हैं that are not within the reach of the organization, जो organization की reach में नहीं है, that is beyond the organization's reach. First है आपका competition. See, competition is one of the most important factor in deciding the price. अगर कंपनी को अपना प्राइस कॉम्पिटिटर के प्राइस के इक्वल रखना है, लोअर रखना है, दिस डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर प्रोडक्ट इज सिमिलर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, व्हाट वुड बी द प्राइस? ठीक है, आप को अपनी क्वालिटी भी इंफीरियर नहीं करनी है, आपको प्राइस भी ज़्यादा लो और हाई नहीं रखना है, क्योंकि आपको अपनी कॉस्ट भी कवर अप करनी है। तो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन प्राइस डिसाइड करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू पीपल हैव सीन मेनी टेलीविजन एड्स विच आर फोकसिंग ओनली ऑन द प्राइस। जैसे आपका एरियल और टाइड का एड आता था, ठीक है, आपका रिन और एरियल का एड आता था, ठीक है, उसमें क्या होता था, दो वॉशिंग पाउडर्स है एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी, दे आर फोकसिंग ऑन ओनली द प्राइस। एक बकेट बीच में रखी है एंड टू पैकेट्स आर बीइंग सीन, और उसने बोला अब तो ये 45 में था, नाउ इट इज अवेलेबल ऑन 30। मींस डायरेक्टली दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स कि अगर एरियल यूज करें या टाइड यूज करें या रिन यूज करें तो क्या आपके क्लोथ को इफेक्ट होगा। नो, दे आर मेनली फोकसिंग ऑन द प्राइस। कॉम्पिटिटर को सामने कस्टमर को बताया जा रहा है कि अगर आप एरियल लेंगे तो 45 का पड़ेगा, रिन लेंगे तो 30 रुपीज का पड़ेगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली कंज्यूम प्रोडक्ट्स। और इसमें आप क्या करते हो, जब आप कस्टमर को ऐड दिखा रहे होते हो तो आपको उस ऐड में कस्टमर के फीचर्स, प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ साथ आपको फोकस कस्टमर उस पर प्राइस भी करना पड़ता है। बिकॉज अगर एक सोप अगर आपका 10 रुपए का है, दूसरा सोप हो सकता है 11 रुपए का हो, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 रुपीज, बट यू हैव टू फोकस ऑन प्राइस ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिमांड। ठीक है, फॉर अ न्यू प्रोडक्ट देयर इज नीड टू प्राइस सच प्रोडक्ट स्ट्रैटेजिकली इन सच अ वे दैट इट पेनिट्रेट्स द मार्केट। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में नया लॉन्च करने वाले हो तो कंपनी या तो प्रोडक्ट की स्कीमिंग करेगी या कंपनी प्रोडक्ट की पेनिट्रेट करेगी। देखिए, पेनिट्रेशन का मतलब है कि इफ ही वांट्स दैट टू कैप्चर अ मार्केट शेयर इन अ लॉन्ग रन, तो उस केस में उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस लो रखना पड़ेगा। और अगर वो ये चाहती है कि जब उसका नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है, it should keep their product price high so that they can maintain the quality, they can come up or they can cover the cost of innovative features। उसमें उसको अपना प्राइस हायर रखना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यू नो सोनी और एप्पल, ये लोग क्या करते हैं, स्कीमिंग करते हैं प्राइस की। दे कीप देयर प्रोडक्ट प्राइस हायर whenever they launch the new product in the market, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रोडक्ट में न्यू इनोवेटिव फीचर्स है, न्यू टेक्नोलॉजी है, the quality is very very good, so they cannot keep their price high low sorry low, they have to keep their price high। ठीक है, next is your supplier। देखिए, supplier of raw material and other goods have a significant effect on the price of a product। अगर raw material का प्राइस ज़्यादा होगा, उसका इफेक्ट आपके फाइनल प्रोडक्ट पे भी आएगा। या वो रॉ मटेरियल्स जो कि आपके स्केर्सिटी में है, ठीक है, अगर उन जो स्केर्सिटी में रिसोर्सेज है, अगर उस रॉ मटेरियल को भी आप यूज कर रहे हैं, इन दैट केस आल्सो द प्राइसेस वुड बी हायर। इकोनॉमिक कंडीशंस, सी इफ अगर आपकी इकोनॉमी बूम पे है, इन्फ्लेशन पे है, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ increase in the price level और people have more purchasing power। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। जब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो जब प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपके प्राइसेस भी आपके इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स। देखिए, the various consumers and businesses that buy a company's product or services may have an influence in the pricing decision। किसी भी कस्टमर का नेचर और बिहेवियर towards a product is very very important। How it looks the product,
whether it looks a product as as a solution, whether they take as a product as a status symbol, or whether they take product only for the consumption purpose. देखिए कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को किस नजरिए से देख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी प्रोडक्ट को एक स्टेटस सिंबल से देख रहा है, ठीक है। अगर कोई भी सपोज अगर कोई ब्लैकबेरी का टायर पहन ले या मर्सिडीज की गाड़ी में घूमे तो बट ऑब्वियस सी बात है इट रिलेट्स टू द स्टेटस सिंबल, ठीक है। स्टेटस सिंबल से देखोगे, अगर आप नाइकी के शूज पहन लें स्टेटस सिंबल, तो आप या फिर आप सिर्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहे हैं या आप अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं, तो आपका नज़रिया क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी इम्पैक्ट करता है आपके प्राइस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। नो डाउट गवर्नमेंट टेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस। जब कभी भी कोई भी कंपनी प्राइस डिसाइड करती है, उसको गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस को पूरा फोकस करके ही प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। अगर आप उससे ज़्यादा बियॉन्ड में जाओगे then government can take step against you. Our prices cannot be fixed higher. A government keeps a close watch on the pricing in the private sector. ठीक है। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ थिंग्स के लिए आपके बॉडीज हैं, जैसे आई टेक एन एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस। फॉर द इंश्योरेंस कंपनी IRDA इज देयर, फॉर द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ट्राई इज देयर, फॉर द बैंकिंग RBI इज देयर, ठीक है। फॉर द ऑटोमोबाइल CII इज देयर। तो हर एक इंडस्ट्री के लिए गवर्निंग बॉडीज हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उससे ज़्यादा हायर चार्ज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। And students, I hope you people would have understood today's topic.